Hello friends, so let's discuss the treatment aspects or treatment point of view this PUD disease, that is पेप्टिक अल्सर डिसीज. सो जस्ट हमने कवर किया PUD अल्टीमेटली है क्या. इसमें गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ये दो अल्सर आते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो सीन द ईसोफेजल अल्सर, ओके, which is mainly due to the GERD, gastroesophageal reflux disease. So gastric ulcer is not that much common, but duodenal ulcer is common. PUD की ट्रीटमेंट देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी PUD का जो इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है वो भी ऑलरेडी मैंने कवर किया है उस पर्टिकुलर वीडियो में. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है. ओके, सो देयर आई हैव एक्सप्लेन द इन्वेस्टिगेशन यू कैन से अंडर द PUD. सो एंडोस्कोपी है उसमें, देन एंडोस्कोपी से हम एक सैम्पल वगैरह निकालते हैं, देन रैपिड यूरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, and by that we will confirm whether it is a Helicobacter pylori presence or not. Otherwise we will give the a kind of conservative management we will cover, okay, like PPI inhibitors, then H2 blockers, then you can say acidity जो कम करने के लिए whatever the layman is taking, like you can say antacids, that we are giving in the management aspects. Okay, so you can see here PUD treatments include the diet and lifestyle modification. First of all, non-pharmacological treatment, and second one is pharmacological treatment. Non-pharmacological treatment में जो भी आप अपने आप से खुद कर सकते हो, okay, you can see here जो अपने आप से खुद कर सकते हो. So to reduce the peptic ulcer symptoms, enjoy 5 or 6 small meals per day, small but treatment frequent meal, okay, that you can take. Always sit upright in a chair while eating, okay, and rest a few minutes before and after each meal. This is a, you can say, do not sleep after meal, just sit for a while or for a few minutes after eating, okay, or after a meal. So enjoy your last meal or snacks at least 3 hours before bedtime. So you can see here, avoid spicy foods, avoid stress, because already मैंने आपको बताया कि वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, and by that there is a secretion of HCl in the stomach and leads to the ulcer, leads to the perforation, leads to the hemorrhage, okay, and leads to the melena. Stop NSAIDs, because again this decreases the prostaglandin synthesis. If the prostaglandin synthesis is not there, definitely there is not that much bicarbonate ion and not that much blood supply to the mucosa layer of the intestine, okay. So intestine and the, you can say, a kind of stomach. So regular exercise, yoga वगैरह you can do in the non-pharmacological management, okay. The now pharmacological management, you can see here we have antacids, we have H2 blockers, we have a PPI, proton pump inhibitors, we have sucralfate. Sucralfate means ये म्यूकस प्रोटेक्टिंग लेयर एक फॉर्म करके रखता है. ये भी सिरप ही है, बट डेफिनेटली सुक्रालफेट के अंदर काइंड ऑफ सुक्रालफेट एक एजेंट है विच कवर्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ओके, एंड दैट्स वाई HCl का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट म्यूकोसा में से नहीं आता है due to this sucralfate which form a layer between HCl and the mucosa of the stomach, okay. Then bismuth subsalicylate, okay, this again we can use. Then prostaglandin analogs. So let's see the one by one. And antacids में you can see here, antacids में जो भी एसिड जो ज़्यादा फॉर्म हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली देंगे. सो वी हैव अ काइंड ऑफ 2 basic solution here. Substance which neutralize the hydrochloric acid directly and immediately, they is providing the instant relief to the patient. So antacids contain we have a 2 alkali like magnesium dihydroxide and aluminum trihydroxide, okay. तो ऐसा कोई सिरप आता है एंटासिड, जेलुसिल, नंबर ऑफ सिरप एंटासिड सिरप आते हैं, डाइवोल ले ले है, ओके, सुक्राल यू कैन से सुक्रालफेट ओ है, ओके. देन काइंड ऑफ जेलुसिल जैसे बोले, बहुत सारे ऐसे सिरप्स आते हैं विच कम अंडर द एंटासिड. सो in some syrup they are having a kind of simethicone, some do not have. So magnesium dihydroxide, aluminum trihydroxide. तो एल्युमिनियम कॉन्स्टिपेशन करता है, ये डायरिया करता है, दोनों ही इसमें रहता है, ओके. एक सिरप में दोनों ही रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड दोनों ही रहने वाला है. बट इन यू कैन से सम सिरप में सिमेथिकोन हो सकता है, सब में नहीं हो सकता है. सो एंटीसिमेथिकोन सोमेथिकोन जो है ये डेफिनेटली है एंटीस्पास्मोटिक है. सो मार्केट में प्रिपरेशन है इसका, दोनों ही सॉल्ट वाला काइंड ऑफ अल्कली रहता है. तो डाइजीन, म्यूकेन जेल, अगेन म्यूकेन जेल ये एंटासिड्स हैं. तो 10 ml BD डोज में, या फिर वेनेवर इट नेसेसरी, SOS यानी कि वेनेवर इट नेसेसरी वी कैन गिव to the patient if there is a you can say regurgitation of stomach content, or you can say there is a burning sensation of the over the epigastrium. So side effect can be diarrhea, constipation due to the aluminum and the magnesium used in the antacids may seen to the patient. Digoxin, again Digoxin tablet, they are common in the antacids.
for emergency purpose chew and eat. Okay, so you have to do not swallow the whole tablet, you have to chew or you have to squeeze this tablet over the mouth. Okay, so instant relief of ulcer pain can be seen by this. So Mucan gel we have a Digen syrup as well. So 10 cc 10 ml we can give whenever we are necessary. Okay, H2 blockers, next step is H2 blockers. So ranitidine, famotidine, cimetidine. Okay, these are the popular nowadays, these are the popular drugs which we are giving as a H2 blockers. H2 blocker क्या है? If you know the proper mechanism by which HCl is secreted in the stomach, definitely you can correlate with the pharmacological management of the you can say of the peptic ulcer disease. Okay, there is no worry to how to we you can say calculate the dose, how we will give the dose. Okay, definitely you you watch a particular video, already I have uploaded that. तो you watch the particular video कि कैसे सिक्रेशन कैसे होता है, किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से सिक्रेशन होता है, कौन सा सेल कैसे स्टिमुलेट करता है, और वो स्टिमुलेशन अगर हम इनहिबिट करें डेफिनेटली सिक्रेशन नहीं होगा. तो H2 ब्लॉकर क्या करते हैं, HCl के जो सेल्स प्रोड्यूस करने वाले पैराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल को वो स्टिमुलेट करता है. तो H2 ब्लॉकर से हिस्टामाइन जो फॉर्म हो रहा था अभी वो हमने ब्लॉक कर दिया है, तो अभी स्टिमुलेशन नहीं होगा तो HCl नहीं बनेगा. ranitidine, famotidine, cimetidine, Rantac 150 mg, famotidine, cimetidine, famotidine के कुछ ऐसे यू कैन साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आते थे, दैट्स वाई ranitidine हम नॉर्मली अभी H2 ब्लॉकर्स में यूज़ करते हैं. तो टैबलेट Rantac 150 mg बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर डिनर वी कैन गिव whenever we feel a kind of burning sensation over the chest or the epigastric pain. Okay, so then PPI, proton pump inhibitors, again these they are playing important role for the secretion of the HCl. So pantoprazole, esomeprazole, lansoprazole, rabeprazole, these are the you can say come under the PPI, more effective than H2 blockers. Okay, so first of all you have to focus on the PPI, not the H2 blockers. So PPI, pantoprazole, esomeprazole, lansoprazole, rabeprazole, these are the drugs. Normally pan 40 we are giving, pan D, pan 40, a kind of Cyra-D, where the Cyra-D में rabeprazole है. lansoprazole नॉर्मली फीमेल्स में हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करते हैं. देन पैंटाप्राजोल, जितने भी पैंडी वगैरह है, पैंडी है, ओमेप्राजोल भी इसमें एक आता है, ओमेप्राजोल, ओमिडी. तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंटासिड्स दिस PPI प्लस एंटी एमिटिंग उसमें ऑलरेडी रहता है. एक प्लेन PPI भी आता है, पैन 40 आता है जिसमें पैंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम रहेगा. तो बिफोर ब्रेकफास्ट पेशेंट को देना रहता है, बिफोर डिनर, बिफोर लंच वी हैव टू गिव द काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रग्स. दिस वी हैव सीन Rantac हो गया या फिर H2 ब्लॉकर्स है या फिर PPI इनहिबिटर्स हैं, तो बिफोर ब्रेकफास्ट आपको देना रहता है. सो you can see here. So tablet Pantop 40 mg, again tablet Pan 40 mg you can see here. So one tablet OD, one tablet, it is mentioned is a one tablet. Okay, this is the one tablet. Okay, not that much. Do not confuse here. One tablet OD before breakfast. Okay, so that is mentioned here. Let's see the drug as well. So Pan 40 ये सभी है, Pantop 40 ये ब्रांड है, do not confuse कि यही अभी टैबलेट लेना. Pan D, Pan 40, whatever we can say, whatever we can buy. ये डेफिनेटली उसमें पैंटोप्राजोल ये रहना मांगता है. ओके, तो कोलोडल बिस्मथ कंपाउंड में देख सकते हो, बिस्मथ सैलिसाइलेट आता है विच कोट्स अल्सर कोटिंग सब्सटेंस है. सो दैट इज़ नॉट दैट मच कॉमनली यूज. देन सुक्राल्फेट जेल है इसमें. सो सुक्राल्फेट जेल हम यूज़ करते हैं. तो बिस्मथ सब सैलिसाइलेट ये जो है अल्सर कोटिंग सब्सटेंस है. सो इफ़ देर इज़ एनी अल्सर और अल्सर का चांसेस अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या करता है, सुक्राल्फेट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के रखता है अराउंड द स्टमक, अराउंड द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ओके, एंड फॉर कोटिंग ऑफ द अल्सर वी आर यूजिंग द सुक्राल्फेट जेल. सो यू कैन सी हियर ओडी डोज में इसको लेना रहता है सुक्राल्फेट ये है. ओके, सुक्राल बहुत सारे इसके ब्रांड्स है, सुक्राफिल नाम है इसका. ओके, यू कैन सी हियर सुक्राल्फेट इसके अंदर रहता है विच कवर्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम एंड it provides the covering between the direct contact of the HCl to the inner lining of the stomach. Okay, then PG analogs में अल्सर प्रोटेक्टिव जो सब्सटेंस है लाइक मेनली ड्रग ऑफ चॉइस इन एनसैट्स, तो उसको स्टॉप करना है. एनसैट इंड्यूस अल्सर्स बहुत सारे पॉपुलर्स हैं, तो एनसैट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम करता है, अल्सर को क्रिएट करता है, एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट गिव दिस काइंड ऑफ ड्रग्स. ओके, और वी विल अवॉइड दिस काइंड ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द treatment point of view. Okay, then tablet misoprostol we are giving as a prostaglandins analogs. Okay, so tablet misoprostol normally these kind of drug we are giving for the natural abortion in the females
टैबलेट मिसोप्रोस्टॉल 200 मिलीग्राम, यू कैन सी हियर मिसोप्रोस्टॉल 200 मिलीग्राम, वी कैन गिव दिस QID, ओके 4 बार आपको ले सकते हो, 4 टैबलेट्स QID 4 टाइम इन अ डे, ओके 4 टाइम इन अ डे आपको लेना रहता है। सो टू रिलीव द सिम्टम्स। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक फॉर H पाइलोरी, यूरिया ब्रिड पॉजिटिव, रैपिड यूरिया टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए नॉर्मली एंटीबायोटिक हम लेते हैं। तो अगर H पाइलोरी पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली आपको एक किट वगैरह लेना पड़ता है टू ट्रीट फॉर द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस PUD। तो ट्रिपल रेजिमिन इसमें रहता है, जिसमें एक PPI ड्रग रहेगा, 2 एंटीबायोटिक रहेगा, ओके। तो दिस नॉर्मली दिस है द प्रीफर्ड। वो किट कैसे दिखता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड क्वाड्रुपुलर रेजिमिन में 4 ड्रग्स रहते हैं। सो यू कैन सी हियर ट्रिपल रेजिमिन में ओमिप्रोजोल, ट्रिपल रेजिमिन में एक PPI है और 2 एंटीबायोटिक्स है। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड टिनेडाजोल क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये 2 एंटीबायोटिक हो गए, और ओमिप्रोजोल और लैंसोप्रोजोल कोई भी एक, ये एक PPI होगा। तो एक PPI 2 एंटीबायोटिक्स ये ट्रिपल रेजिमिन में रहेगा। क्वाड्रुपुलर रेजिमिन में मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यू कैन सी हियर ये किट है, ये किट में काइंड ऑफ यू कैन सी हियर एक ये किट में काइंड ऑफ वी हैव अ वन, यू कैन सी हियर वेयर इट इज मेंशन इच किट कंटेन, तो 2 लैंसोप्रोजोल कैप्सूल, 2 क्लैरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स, 2 टिनेडाजोल, ओके। तो आपको एक टाइम में क्या लेना रहेगा, एक लैंसोप्रोजोल लेना रहेगा, एक क्लैरिथ्रोमाइसिन, एक टिनेडाजोल, ओके। तो ऐसे आपको 2 यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ इच किट कंटेन 2 लैंसोप्रोजोल, 2 क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड 2 टिनेडाजोल, ओके। तो ये जस्ट आपको ट्रिपल रेजिमिन में है। नाउ क्वाड्रुपुलर रेजिमिन में देख सकते हो एमोक्सिलिन है, टैबलेट है, टिनेडाजोल है एंड ओमिप्रोजोल। अगेन दिस इज ट्रिपल किट, ओके, ट्रिपल रेजिमिन का है। नाउ अगर ट्रिपल किट में अगेन यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रिपल रेजिमिन में आएगा, एमोक्सिलिन टैबलेट्स 2 टैबलेट्स, टिनेडाजोल 2 टैबलेट्स, ओमिप्रोजोल 2 कैप्सूल्स। तो एक टैबलेट आपको लेना है फॉर सिंगल डोज, ओके। सो यू कैन सी हियर 2 एंटीबायोटिक्स एंड 1 PPI कम अंडर द ट्रिपल रेजिमिन। ट्रिपल रेजिमिन में 1 PPI 2 एंटीबायोटिक्स आता है, ओके। सो आपको ये कब तक लेना रहेगा, 14 डेज तक लेना है, ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक PPI लैंसोप्रोजोल है या फिर ओमिप्रोजोल है, यू कैन सी हियर एमोक्सिलिन 2 टैबलेट्स है, टिनेडाजोल 2 टैबलेट्स है, ओमिप्रोजोल 2 कैप्सूल्स है। तो एक कैप्सूल ओमिप्रोजोल, टिनेडाजोल का एक टैबलेट्स और एक टैबलेट एमोक्सिलिन, आपको ऐसा एक टैबलेट ये जितना मैंने आपको बताया ऐसा 14 डेज तक लेना है फॉर द ट्रिपल रेजिमिन। तो यू कैन सी ओमिप्रोजोल 20 mg आपको लेना है, और क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल सुबह शाम 14 डे के लिए, ओके। दिस इज द BD 500 mg BD, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg BD, देन मेट्रोनिडाजोल 500 mg BD, ओमिप्रोजोल 20 mg BD, ओके। सो ऐसा सुबह शाम और BD पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू टेक फॉर 14 डे। नाउ क्वाड्रुपुलर रेजिमिन में देख सकते हो यू हैव अ काइंड ऑफ सो दिस अगेन द थिंग्स, अगर एंटीबायोटिक अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली यू कैन सी द पावर ऑल्सो चेंजेस। तो अगर इंस्टेड ऑफ मेट्रोनिडाजोल इफ वी आर टेकिंग अ काइंड ऑफ एमोक्सिलिन डेफिनेटली 1 ग्राम हो जाएगा, बट द डोसेज विल बी सेम BD, ओके, यानी कि सुबह शाम फॉर 14 डे, ओके। देन क्वाड्रुपुलर रेजिमिन में 4 ड्रग्स आएंगे, एक ओमिप्रोजोल, एक PPI आएगा, PPI कोई भी ले सकते हो आप, और उसमें क्या आता है एक मेट्रोनिडाजोल, एक एंटीबायोटिक आएगा और एक बिस्मथ सब सैलिसाइलेट आएगा, ओके। यानी कि कोटिंग वाला जो एक सब्सटेंस है, कोटिंग वाला जो एक ड्रग हमने देखा सुक्राफिल, वो यहाँ पे आने वाला है। तो ये देख सकते हो इसमें, तो ये सभी ड्रग्स इसमें आने वाला है, आप डोंट वरी। और एक एंटीबायोटिक और आएगा, ओके। तो 2 एंटीबायोटिक्स, एक कोटिंग फॉर्म करने वाला एक मेडिसिन और एक काइंड ऑफ PPI, ये 4 ड्रग कंबाइन हुआ रहेगा। तो देख सकते हो इसमें मेट्रोनिडाजोल 250 mg आपको 4 टाइम लेना पड़ेगा, QID रहेगा इसका डोज। बिस्मथ सब सैलिसाइलेट ये आपको QID रहेगा। ओमिप्रोजोल QID यानी कि 4 टाइम इन अ डे, ये आपको BD रहेगा, बीसिन डाई यानी कि 2 टाइम इन अ डे। और जो टेट्रासाइक्लिन 500 mg का जो एंटीबायोटिक्स है ये 4 टाइम इन अ डे रहेगा। तो ये सभी एक साथ आपको लेना है, या फिर ये एक दिन का डोज है, ऐसा 14 डे आपको कंटिन्यू लेना रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट अवर यू कैन से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अवर PUD, ओके। सो नॉर्मली ट्रिपल रेजिमिन में से काम हो जाता है पेशेंट का, बट देर आर सर्टन कंडीशन वेयर द सिविरिटी इज मोर, एंड दैट्स व्हाई वी आर शिफ्टिंग टू द क्वाड्रुपुलर रेजिमिन वेयर द 2 एंटीबायोटिक्स द सेम थिंग्स। ट्रिपल रेजिमिन जो है वो ट्रिपल रेजिमिन में एक काइंड ऑफ कोटिंग वाला एक ऐड हो जाएगा, और क्वाड्रुपुलर रेजिमिन से उसको हम यू कैन से इंडिकेट करते हैं। तो दैट इज